of RAV, Director RAV, Dr. Vanna Siroha ma'am, Gurujans, I welcome you all in another intellectual session of Gyan Ganga webinar series. I, Dr. Madhul Tiwari, on behalf of Rashtriya Ayurved Vidyapeeth, welcome you all for 234th session of this knowledge voyage. On the onset, I would like to express our heartfelt gratitude and welcome our mentors who have always been there to guide, motivate, and encourage us for sustenance of this series. Respected Vaid Shri Devendra Trigunaji, President of Governing Body Rashtriya Ayurved Vidyapeeth. Respected Vaid Shri Rajesh Kotecha Sir, Secretary Ministry of Ayush. Respected Vanna Siroha Ma'am, Director Rashtriya Ayurved Vidyapeeth. Let us begin the session by seeking the blessings of Bhagwan Dhanvantri. Moving forward, it is my great honor to introduce our today's expert and our guest, Vaid Dr. D. Jayashree Ma'am, who will be shedding light on the topic prevention by Swasthvat. Vaid Dr. D. Jayashree is one of the India's most respected senior Ayurvedic physician with over 40 years of clinical excellence, an alumna of Gujarat Ayurveda University and a revered RAV guru. She represents the 11th generation legacy of Vaidyaratnam Pandit D. Gopal Charulu, a leading Ayurveda influencer with a strong national presence. She is renowned for her expertise in women's health, infertility, pediatrics, neurological disorders, and chronic lifestyle diseases. Dr. Jayashree ma'am has received several national and international recognitions and has delivered talks across India and abroad. Now, I would like to invite ma'am to proceed with the lecture. But before that, I kindly request all the honorable listeners to kindly switch off their mic and cameras for an uninterrupted and very good session. Most welcome, ma'am. Most welcome. Thank you very much for the intro and thank you very much for calling me for this session. My namaskar is at the feet of Lord Dhanvantri and our Acharyas, the great Shris Charaka, Shushruta, Vagbata, who have shown us the divine path. Our ancestors, elders, Ayurvedacharyas, our great grandfather Pandit Gopalacharya, and with the great gurus who are all present here, Vandanaji, Adivik gurus, and the dear Shishyas and all the viewers. My pronouns to all of you. Today I have been given the topic about, can we have the slide, sir? Yes, ma'am, I will be sharing the slide. Just a minute. So today we are going to be talking on preventive lifestyle. So today in this world where diseases are increasing, stress is rising, daily routines are rapidly shifting, prevention is no longer an option for us. It is essential. A preventive lifestyle means taking care of our health before illness appears rather than waiting for the problem to arise. Ayurveda and allopathy, that is the difference. You wait for something to come and then you take care and do all the preventive. Does not work, except for vaccine. For everything else. In Ayurveda, हमने वो अवसर है, हमें वो ज्ञान दिया है बड़ों ने कि we are able to know this is the Ritu, this is going to come, so we can prevent it. This is the Purva Rupa, so we can prevent this particular thing. So that's a big lesson that we all have. But they claim that is the modern knowledge, precision and evidence. Modern medicine has given us incredible tools like the accurate diagnostic test, knowledge of nutrition and metabolism, understanding of risk factors, vaccinations, screening program. These all help to detect the disease early and sometimes even before the symptoms begin. I'm so sorry to interrupt you, ma'am. क्या screen share हो रही है क्या, ma'am? Is it screen visible? No, I'm not getting the screen here. Okay, ma'am. Let me check. Yes, now it is visible. Okay. Thank you so much. Yeah, I'm in the 50 slide, sir. So allopathy one is all these screenings they will do and they will predict somebody you may be going and you get this disease and all. Whereas when we come to the traditional wisdom, it's about balance and harmony.
They have taught us how to live in harmony with our body and with the natural world around us. So they teach us to forecast, to prevent, instead of allowing to manifest and cure, we start preventing that. So we have to eat according to the season and nature, are very much part of our syllabus. Move our body every day, breathe deeply, calm the mind, sleep on time, and maintain emotional balance. Respect our environment. All these practices nurse long-term wellness and not disease control. Let us talk about blending with both the worlds. So, in allopathy, they are talking about nutrition. That is the modern science tells us about balanced diet, proteins, and micronutrients. Whereas tradition-wise, local seasonal food, spices like turmeric, ginger, mindful eating, all this is advised. Whereas together, when we take these two, physical activity, modern fitness, focus on the cardio and strength training, the different systems of yoga and natural movement, together that gives us a routine that strengthens both our body and mind. Slide 7, sir. We talk next about the mental and emotional health. So modern physiology provides us therapy and stress management tool, whereas traditionally practice gives us meditation, chanting, breath work, spiritual grounding. Together we get resilience and deep peace. What is the daily routine we talk about? Generally, today's modern world we talk about circadian rhythm, sleep hygiene, like Dindicheriya in Ayurveda, rising early, self-care, natural element. Together, they can keep our body clock healthy and our energy stable. So, when we talk about preventive healthcare, it is a regular checkup, screening, and vaccination from the modern system, cleansing routines, as a panchkarma for keeping ourselves healthy, verbal support, seasonal adaptation from tradition. These two together will give us a awesome combination. So let us go forward and talk about why this is necessary. Next slide, please. There's an alarming rise in non-communicable diseases. That is the cardiovascular disease. It's on a very high note today. Diabetes, obesity, respiratory disorder, mental health disorder. So many huge diseases are present today. So what is the common factor? Because if we want to prevent, we have to talk about a common factor. 9th slide, please. So common factors are poor diet. When the diet is poor, physical inactivity. Today, everybody has become so lazy. It is house to car to office, back to sofa, back to the mobile. So physical activity has become very less, except for the health conscious people who go for yoga or gym. Physical activity definitely has to be taken care of. Stress at every level. पहले कभी ऐसा नहीं होता था कि स्ट्रेस के बारे में हम बात करते थे, पर अभी तो कैसे छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते समय भी ऐसा बोलते हैं, मम्मी मुझे बहुत स्ट्रेस है, बहुत होमवर्क है. हाउ इज दैट? दिस स्ट्रेस हैज बिकम अ कॉमन वर्ड जो सबके दिमाग में बैठ गया है कि स्ट्रेस तो होना चाहिए. तो ये बहुत गलत बात है. एंड इनएडिक्वेट स्लीप, रात को 12 बजे 1 बजे 2 बजे तक वी कीप सीइंग द मोबाइल और फिर नींद अच्छी तरह से आती नहीं है और सुबह तो ये चाहते हैं सब लोग. सो दैट स्लीप का जो पैटर्न है 4-5 आवर्स का, तो वो सब लोगों को काफी नहीं होता. सो इनएडिक्वेट स्लीप भी एक कॉमन रिस्क फैक्टर हो गया है. और एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस जो है वो भी रिस्क फैक्टर में समा जाता है. तो हम पहले न्यूट्रिशन के बारे में बात करते हैं. तो स्लाइड 10 प्लीज. न्यूट्रिशन में एविडेंस बेस्ड और कल्चरली अलाइंड जो है उसके बारे में मॉडर्न में पहले देखते हैं. तो वे लोग क्या बोलते हैं? होलसम और मिनिमम प्रोसेस्ड फूड बोलते हैं, पर ज्यादातर हमें बाहर से सब प्रोसेस फूड भी मिलते हैं. और मॉडर्न में कैलोरी के ऊपर ज्यादा प्रेशर देते हैं. प्रोटीन और फाइबर होना चाहिए, ट्रांस फैट कम होना चाहिए, सोडियम और एडेड शुगर कम होना चाहिए. दिस इज देयर थियरी. और ट्रेडिशनल में अगर हम देखें तो वो अपने प्रिंसिपल के हिसाब से, जैसे टर्मरिक है, जिंजर है, ये एंटीऑक्सीडेंट्स में रिच है और हमें अग्नि को बल देता है. सो प्रिफरेंस
सीजनल और लोकल, हमारे आजू बाजू में वो जो उगते हैं विच इज अवर लोकल प्रोड्यूस, उसको ज्यादा यूज करना चाहिए। और माइंडफुल और स्ट्रक्चरल, यानी कि टाइम टाइम पे सूर्योदय पे, देन 11 to 1 जो हमारा टाइम है मिड मील, जो सबसे बड़ा होना चाहिए। और एविडेंस बेस्ड जो डाइटरी हैबिट्स है उसके हिसाब से हमें कंप्लायंस और लॉन्ग टर्म आउटकम के लिए वो फॉलो करना चाहिए। 11th स्लाइड प्लीज। फिजिकल एक्टिविटी, स्ट्रक्चर्ड एक्सरसाइज। तो मॉडर्न गाइडलाइन में क्या कहते हैं कि एटलीस्ट 115 मिनट्स मॉडरेट एरोबिक एक्टिविटी करना चाहिए। वीक में 2 बार तो स्ट्रेंथ का ट्रेनिंग करना चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी और बैलेंस एक्सरसाइज एडल्ट्स के लिए होना चाहिए। ये मॉडर्न का गाइडलाइन है। हमारे में आयुर्वेद में योग में क्या कहते हैं कि बैलेंस होना चाहिए। ब्रेथ के ऊपर ज्यादा स्ट्रेस देते हैं कि ब्रेथ का कंट्रोल अच्छा होना चाहिए। स्ट्रेस रेगुलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए मेडिटेशन ये सब होना चाहिए। और फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पे ये ऋतु वाइज फ्लेक्सिबिलिटी का इंडिकेशन करते हैं। तो हर रोज जो हमें करना है योगा या वॉकिंग जो भी है, इट हैज टू बी ऑन अ रेगुलर बेसिस। ये हाइपरटेंशन, पेन, मेंटल एबिलिटी सब में अच्छा रिजल्ट देता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। मेंटल हेल्थ और साइकोलॉजिकल साइंस माइंड बॉडी प्रैक्टिस पे ज्यादा हेल्प करता है। तो मॉडर्न में क्या कहते हैं कि जो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी है, स्ट्रेस मैनेजमेंट प्रोग्राम है और हाइजीन प्रोटोकॉल है, इसके ऊपर ये लोग ज्यादा ध्यान देते हैं। और ट्रेडिशनल जो माइंड एंड बॉडी प्रैक्टिसेस है उसमें मेडिटेशन, ब्रीथिंग टेक्निक पे ज्यादा ध्यान देते हैं। सो रिड्यूसिंग सिंपैथेटिक एक्टिवेशन, इमोशनल जो रेगुलेशन है वो करना चाहिए। और स्लीप क्वालिटी को बेटर रखना चाहिए। ये दोनों अगर मिला के हम लोग फॉलो कर सके तो कन्वेंशनल केयर विल बी टेकन केयर ऑफ। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हेल्थ केयर और स्क्रीनिंग के बारे में बात करते हैं। तो एलोपैथी में क्या कहते हैं कि वैक्सीनेशन करना चाहिए। और हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है, कैंसर है, लिपिड डिसऑर्डर है, ये सब के लिए हमें प्रिवेंटिंग दैट इज स्क्रीनिंग करके पता लगा देना चाहिए कि अर्ली राइडिंग इन सम डिफिकल्टी। और ट्रेडिशनल हेल्थ सेंटर में क्या कहते हैं कि डेली रूटीन जो है सीजनल एडेप्टेशन है। और सेल्फ केयर, हमें अपने शरीर का जो भाषा है हमें सुनना चाहिए। लिसन टू योर बॉडी लैंग्वेज, और आपको उस बॉडी लैंग्वेज के हिसाब से चलना चाहिए। जुकाम आने वाला है, आई एम फीलिंग लिटिल कोल्ड, लिटिल फीवरिश, तो तुरंत ही टेक ऑफ सम प्रिवेंटिव मेडिसिन सो वी डोंट गेट इनटू द डिजीज। ये अप्रोच हमारे शास्त्र में काफी इंपॉर्टेंस दिया गया है। स्लाइड 14 प्लीज। एनवायरमेंटल और लाइफस्टाइल अलाइनमेंट अगर हम देखते हैं तो रिसर्च का जो हाईलाइट है, ये लोग एयर के क्वालिटी पे ज्यादा दबाव देते हैं। सिर्काडियन रिदम का रेगुलेशन, डिजिटल हाइजीन और अर्गोनॉमिक लिविंग पे सिग्निफिकेंस ज्यादा देते हैं। ट्रेडिशन में हम क्या बोलते हैं कि सनलाइट, सूर्य का प्रभाव हमारे पे जरूर होना चाहिए। नेचर के साथ हमें हमेशा जुड़ा रहना चाहिए। नेचर एंड वी शुड बी इन कोऑर्डिनेशन विद ईच अदर। और ओवर स्टिमुलेशन नहीं होना चाहिए। जब कोई भी चीज हमें घर के बाहर नहीं जाना चाहिए। और जो स्लीप पैटर्न है नेचर के अनुसार अगर स्लीप पैटर्न हो तो डेफिनेटली हमारा जो है वो शरीर अच्छी तरह से काम करेगा। ये होलिस्टिक प्रिवेंटिव मॉडल बहुत फिजियोलॉजी और बिहेवियर पे डिपेंड होता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। कोलैबोरेटिव और मॉडल जो बैलेंस मॉडल है वहां सेफ और एविडेंस बेस्ड गाइडलाइन ये होता है। तो दो वैलिडेटेड एलिमेंट्स जो है वो प्रिवेंटिव मॉडल, दैट इज साइंटिफिक से प्रिवेंट हुआ हो। कल्चरल कल्चरल का बहुत ध्यान रखना चाहिए। सब लोगों का अलग अलग कल्चर होता है, तो साउंड और कल्चर दोनों इट शुड बी दैट। और सस्टेनेबल मॉडल होता है। प्रिवेंटिव केयर जो है वो क्लिनिकल स्ट्रैटेजी सिर्फ वो नहीं है, पर लॉन्ग टर्म अप्रोच मन में रख के हमें जाना चाहिए हेल्थ केयर तक। तो आयुर्वेद में जो हम कहते हैं स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण, आतुरस्य विकार प्रश्न, तो वहां पर भी हम यही बोलते हैं कि
स्वस्थ ग्रोथ स्वस्थ रहने के लिए जो भी चाहिए वो पहले होना चाहिए। अगर उसमें स्लिप हो गए तो वी हैव टू गो फॉर चिकित्सा। तो ये जो स्वस्थ ग्रोथ का ज्ञान हमें दिया गया है वो जैसा डायरेक्ट गाइडलाइन दिया गया है। तो ब्राह्मणी मुहूर्त में इतना सबसे पहला है, क्योंकि वो भी समय है when the environment is clean, निशब्द होता है। सूर्योदय होते समय वो प्रकाश जो होना चाहिए हमारे शरीर पे जो असर होना चाहिए। द बेस्ट टाइम इज बिटवीन द मॉर्निंग टाइम 4 to 6, 4 to 7। उस समय पे उठना, योगा करना, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना, मेडिटेशन करना। और उसके बाद में काफी ऐसे पद्धति हैं जो सारे लोग करते हैं, जैसे कि तुलसी में पानी चढ़ाना। तो ये तुलसी में पानी चढ़ाने का दो फायदा है। एक तो तुलसी हमें ऑक्सीजन देता है, और दूसरा जो है बेसिकली जब हम पानी डालते हैं और सूर्य उदय होता है तो वो सूर्य उदय का किरण जो है वो पानी से आता है, तो वो रेनबो के कलर में इसका असर बाहर पड़ता है। तो वो जो रेस हम पे पड़ता है ना, वो सातों रंग का रेस सूर्य का किरण हम पे पड़ता है जो हमारे साथ चक्र पे काम करता है। तो उसके लिए उसका उतना बड़ा महत्व दिया गया है। उसके अलावा भी जो दिनचर्या है, ऋतुचर्या है, और इसके बाद जो रात्रि है दैट इज सूर्यास्त के समय में हमें शुभ रात्रि कहना चाहिए, नॉट गुड नाइट एट मिड टाइम। ये भी हमें मन में रखना है। सो स्लाइड 17। सूर्योदय के समय पे जो है वॉकिंग बहुत अच्छा है। उस समय से वॉकिंग करना एटमॉस्फेयर भी साधक होता है, हम भी फ्रेश, और सुबह उठ के हमारा जो वायु का रेगुलेशन, दिन का स्टार्ट होना, ये सब भी ठीक रहेगा। और उसी समय अगर आप यू कैन कैरी योर फोन और मोबाइल, और इसमें मंत्र, प्रेयर्स, डिवाइन म्यूजिक, ये सब करना चाहिए। काफी लोग सिर्फ वॉकिंग करते हैं और बातें करते वॉकिंग करते हैं। आई फील के उसी समय अगर आप से कोई भी हो, विष्णु सहस्त्रनाम हो, देवी मंत्र हो, कोई भी जो मंत्र तो स्लाइड जो हम सुबह उठते समय एट सनराइज सो जाते हैं, तो एक पूरे डे का जो बिगेस्ट एनर्जी होता है वो हमें नहीं मिल पाता है। और अगर रात को हम नाइट पे जाते रहते हैं तो जो नाइट के अंदर हमारे स्लीप के वजह से जो एनर्जी लेना चाहिए वो नहीं मिलता। सो दोनों का नाश होता है। तो हो सके उतना अर्ली मॉर्निंग एंड बेड टाइम पे होना चाहिए। माय वॉल्यूम इज मैक्सिमम। ओके, आई कैन। अभी हम जाते हैं खाने के ऊपर से। 19 स्लाइड। यू आर वॉट यू ईट। आप क्या खाते हैं, कब खाते हैं, और कितना खाते हैं, इसके ये आपके सेक्स, एज, जिस जगह स्टे करते हैं, वो जो हम जो काम करते हैं, कंडीशन, हेल्थ का जो कंडीशन है, अवेलेबिलिटी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो अग्नि, हमारा एपिटाइट जो है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्लाइड 20। आयुर्वेद और मॉडर्न साइंस अग्नि के बारे में बात करते हैं। तो मॉडर्न साइंस में अग्नि को हम अगर कोऑर्डिनेट करना चाहते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया के साथ वी कैन probably bring the same this thing। ये क्या करता है, ये करता है कि ये फूड को कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन में कन्वर्ट करता है। एटीपी और यूनिवर्सल एनर्जी का जो करेंसी है वो माइटोकॉन्ड्रिया के एक्शन से मिलता है। 21st स्लाइड। उसमें क्या है कि जो अग्नि है वो अगर पुअर डाइट हो, डाइट अच्छा ना हो, सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो, कोई काम काज या एक्सरसाइज न करें, और स्ट्रेस ज्यादा हो, तो न्यूट्री या तो फिर एक्सेस न्यूट्रिशन हो, फैट्स और शुगर हो, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और इन्फ्लेमेशन हो, तो इससे ओवरलोड हो जाता है और
आम उत्पन्न होता है। ये आम हमारे सारे बीमारियों का बेसिक कारण माना जाता है। स्लाइड 22। एलोपैथिक टर्म्स और आयुर्वेदिक टर्म्स में अगर हम समानता देखना चाहते हैं तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है, अग्नि है, वो एटीपी या तो वो डाइजेस्टिव एसेंस जिसको बोलते हैं ना, डाइजेस्ट हुआ जो सत्व होता है उसको एटीपी बोलते हैं, और आरओएस जो है वो कीट यानी कि वेस्ट प्रोडक्ट। एलोपैथी और आयुर्वेद में जो समानता है ये सब सोचने से इसको समानता में हम लोग इंक्लूड कर पाते हैं। ओके। डैमेजेस जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए है, प्रोटीन्स है, मेम्ब्रेन्स है। अभी माइटोकॉन्ड्रिया और अग्नि इस बीच में हम लोग सोचते हैं तो जो मंद अग्नि होता है वो दैट गिव्स अस लो एनर्जी, सो लो डाइजेशन, फैट को उत्पन्न करता है, आम को उत्पन्न करता है। और जो विषम अग्नि है वो अग्नि इतना अनप्रिडिक्टेबल और ज्यादा होता है तो उससे या तो कम या तो ज्यादा होता है, जिसके वजह से खाना ठीक तरह से पकता है या ओवर कुक हो जाता है, जिसके वजह से भी जो हमें खाना मिलता है वो खाना ठीक नहीं होता। तो इसका क्या नेसेसिटी है प्रिवेंशन के हिसाब से ऐसे देखें तो जो हम खाते हैं वही तो ठीक होना चाहिए। तो जब भी हम खाना पकाते हैं और जो भी हम पकाते हैं वो ठीक तरह से पकना चाहिए, टेस्ट में अच्छा होना चाहिए, मन को प्रसन्न करना चाहिए, अग्नि ठीक तरह से ज्वलित होना चाहिए, डाइजेशन ठीक होना चाहिए और अच्छी तरह से पकता है तो शरीर हमेशा ठीक रहता है। 23rd स्लाइड प्लीज। अभी रसायन के बारे में अगर हम बात करते हैं तो रसायन क्यों चाहिए, तो अग्नि जो है उसे ठीक रखने के लिए और डाइजेशन, अग्नि ठीक तरह से डाइजेशन हो, मेटाबॉलिज्म हो, उसके लिए चाहिए। और अगर कुछ आम हो तो वो आम को भी वो डाइजेस्ट कर पाए, और आम के वजह से जो भी हमें मुश्किलियां आती है जैसे टॉक्सिसिटी है, इन्फ्लेमेशन है, उसको भी कम करने की क्षमता होनी चाहिए। तो ये दैट इज ऑल्सो रसायन की जेंसिटी होता है। और दोषास को बैलेंस करने के लिए पर्टिकुलरली कफा, कफा से हमेशा डाइजेशन कम होता है। वी नीड ओनली टू मॉइस्चराइज, जितना चाहिए उतना, उससे ज्यादा हो तो उससे फैट भी बनता है। तो दोषा को बैलेंस करने की जरूरत बहुत होती है। और ओजस दैट इज फाइनल जो हमें मिलता है खाने के बाद, वो ओजस का शक्ति सेल्यूलर हेल्थ और इम्यूनिटी के लिए बहुत ही जरूरी होती है। ओके, तो रसायन हर्ब कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट है? 24th स्लाइड प्लीज। रसायन के हर्ब में अश्वगंधा, त्रिफला, गुड़ची और शिलाजित, ये चार मुख्यतः बहुत अच्छी तरह से हमें हेल्प करता है। तो ये चार की हम लोग हर रोज यूज कर पाते हैं, यूज कर सकते हैं। स्लाइड 25। अभी आयुर्वेद में जो सबसे हम सोचते हैं कि विच इज द मोस्ट, आयुर्वेद में विच इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट एडवांटेज जो हम कहते हैं ना, तो ये जो नॉलेज है वो पर्सनलाइज्ड है। जैसे कि प्रकृति के हिसाब से हमें क्या चाहिए ये हम चूज कर सकते हैं इंडिविजुअल बेसिस पे। सो दैट मोस्ट एडवांस है। जैसे गुण प्रकृति उसके हिसाब से कर सकते हैं, और अग्नि के हिसाब से हमें जो चाहिए हर्ब्स और जो भी हो, जैसे कि चुकू कॉफी हो या जिंजर टी हो, ऐसे जो भी हो, अग्नि को बढ़ाने के लिए जो चाहिए वो कर सकते हैं। और एक्सरसाइज, स्लीप और स्ट्रेस हमेशा हमारे कंट्रोल में रख सकते हैं। एनर्जी मेंटल और फिजिकल दोनों टाइप का एनर्जी हमारे हाथ में होना चाहिए। हमें नेचर के साथ एक समान होना चाहिए। वी शुड ट्रैवल विद द नेचर। जब नेचर जागता हो जागना चाहिए, सोता है सोना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्लाइड 26 प्लीज। अभी हम अग्नि के बारे में बात करेंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि हमारा सारा शरीर का जो भी है, अगर हमें स्वस्थ रहना है
तो अग्नि सुपर रिफाइंड और फाइन होना चाहिए, वो होने से 99% वी कैन स्टे हेल्थी। तो ये अग्नि अगर एलोपैथिक में देखें तो दे टॉक अबाउट डाइजेस्टिव एंजाइम, जैसे कि स्टमक का एसिड हो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल मोबिलिटी हो गट का, और माइक्रोबियम और इम्यूनिटी, ये एलोपैथी में बोलते हैं। जबकि हम लोग अगर आयुर्वेद में आते हैं, दैट इज द 27 स्लाइड प्लीज, तो यहाँ पे जो भी हर्ब्स एपिटाइट और डाइजेशन के लिए होता है क्यूमिन है, जिंजर है, फेनल है, मिंट, कोरिएंडर, सिनेमम, पेपरमिंट, टर्मरिक, हल्दी, हींग, तुलसी, गार्लिक, और ये जो स्पाइसी टीज, अभी तो आजकल बहुत सारे टीज निकल पड़े हैं जो ये स्पाइसेस के कॉम्बिनेशन में बनाते हैं, वो फिर जिंजर टी हो, चुकू कॉफी हो, मसाला टी हो, हर्बल टी हो, फिजिकल एक्टिविटी, फास्टिंग, योगा और मेडिटेशन, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 28 प्लीज। अभी हम बात करेंगे अग्नि का। दिस इज जठराग्नि। जठराग्नि जो सबसे डिवाइन अग्नि होता है। 29, ये अग्नि कहाँ पे है? तो ये अग्नि हमारे बॉडी में पित्त के रूप से है, और वो क्या क्या करता है? डाइजेशन, एब्सॉर्प्शन, फूड को एसिमिलेट करता है, और एक्सपीरियंसेस जो डायरेक्टली मॉडर्न अंडरस्टैंडिंग में गट माइक्रोबियम कहते हैं, और मेटाबॉलिस्ट कहते हैं, इंटेलिजेंस, कलर, कॉम्प्लेक्शन, ये सब कहते हैं। लाइफ के एक्टिविटीज के लिए जो बहुत जरूरी है वो अग्नि है। ये सेम अग्नि अगर ठीक नहीं है तो उसके हिसाब से हमें डिजीजेस उत्पन्न होते हैं। जठराग्नि जब कम हो जाता है या बंद हो जाता है तो आदमी बढ़ जाता है। अग्नि का इंपॉर्टेंस इज सो मच, इट इज लाइफ एंड डेथ, परफेक्ट लाइफ और डेथ दोनों के लिए अग्नि ही रिस्पॉन्सिबल होता है। 31, अग्नि का स्थान जो है डियोडियनम है, वो इस पिक्चर में दिखाई देता है। तो दिस इज द प्लेस दैट इज इम्पोर्टेंट, विच इज आफ्टर द स्टमक, द पेरिटम्स। उसके बाद जो हम करने के लिए डाइजेस्टिव फायर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अग्नि हमें पढ़ना चाहिए। अग्नि का कॉन्सेप्ट है, तो स्लाइड 34 में जो अग्नि दिखाई देता है वो समान अग्नि है। दैट इज जो बैलेंस है, जो ठीक है, बर्नर ठीक तरह से चलता है, जो भी हम खाते हैं वो अच्छी तरह से पचता है, ये समान अग्नि है। जबकि मंदाग्नि जो हम बोलते हैं, 35 प्लीज, मंदाग्नि में क्या होता है कि वो अग्नि मंद होता है, कम होता है, बर्नर में ब्लॉक्स होते हैं, डाइजेशन ठीक तरह से हो नहीं पाता, खाना ऐसे ही रह जाता है। इसके वजह से आदमी भी बंद हो जाता है और उसका डाइजेशन भी बंद हो जाता है। उसके ऑपोजिट में अगर देखें 36 स्लाइड में, तो तीक्ष्ण अग्नि के बारे में बात करते हैं, जहाँ पे अग्नि बहुत तेज होता है, जैसे पवन से जो कैंप फायर अगर पवन ज्यादा हो तो बहुत जलता है ऐसे। ये अग्नि इतना तीक्ष्ण होता है कि वो खाना जल जाता है। सो जल जाने से हाइपर एसिडिटी, हार्ट बर्न, बहुत भूख लगना, एसिडिटी, ये सब ज्यादा रहता है। तो ये हाई तीक्ष्ण अग्नि भी हमारे लिए ठीक नहीं है। और जो चौथा अग्नि है जिसे हम विषम अग्नि कहते हैं, ये अग्नि दोनों के बीच है, स्टोव है, और पवन ज्यादा आता है तो कभी कभी वो ठीक तरह से जलता है, कभी कम जलता है, और कभी ज्यादा जलता है। तो इसको हम विषम अग्नि बोलते हैं। तो ये विषम अग्नि भी शरीर के लिए ठीक नहीं है। सो 38 स्लाइड, अग्नि मूलम बलम पुंसाम, दैट इज सारे शरीर के जो स्वास्थ्य है वो एक्चुअली अग्नि का, अग्नि ही रूट कारण होता है। और ये अग्नि बचा के रखना, संभल के रखना, ठीक तरह रखने से हम हमेशा स्वस्थ रह पाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड। न्यूट्रिशन इनटेक जो है ना, वो दोनों में आता है। अब काफी लोग ये भूल जाते हैं। सब लोग समझते हैं कि हाँ बस खा लेते हैं ठीक तरह से, मैंने तो बहुत न्यूट्रिशन खाया, विटामिन खाया, कैल्शियम खाया, ये वो, पर हमेशा किसी को कोसते रहते हैं, मन शांत नहीं होता, टेंशन में रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, तो वो बैलेंस नहीं होता है। माइंड और बॉडी
बॉडी का खाना और माइंड में जो खाना अंदर जाता है, जैसे कि प्रेम हो, द्वेष हो, किसी के साथ असमंजस हो, हार्मोनी हो, चेंज हो, कनेक्टिविटी हो, जो भी हो, ब्रेन के अंदर जो भी इनपुट आता है, सारे थॉट्स भी अगर वो हार्मोनी में नहीं रहता है तो हेल्थ हमेशा बिगड़ता है। तो हमें न केवल शरीर का खाना पे ध्यान रखता है, मन और ब्रेन में जो थॉट्स आते हैं उसके ऊपर भी हमें काफी ध्यान रखना पड़ता है। आजकल 40th से आजकल ये गट ब्रेन एक्सिस के बारे में बात काफी होता है। इसका क्या मतलब है? जो हमने अभी बताया ना कि ब्रेन और स्टमक का जो मिलन होता है ना, वो मिलन के साथ ही हमारे शारीरिक शरीर पर असर पड़ता है। गट में जो है वहां पे सेकेंड ब्रेन है ऐसे बोलते हैं। अभी आप में एक एग्जांपल बताती हूँ। सब हम एक ग्रुप में एक रूम में है और कभी कोई चलो कोई बैड न्यूज आता है, तो उसमें से एटलीस्ट कुछ लोग, 5-6 लोग तो दे विल रन टू द टॉयलेट, राइट? दैट इम्प्रॉपर न्यूज या सैड न्यूज जो मिला है उसके वजह से स्टमक अपसेट हो जाता है, तो तुरंत टॉयलेट को जाने का मन करता है। और सारे रूम में हमें वो पता चलता है कि हमारे माइंड इज डिस्टर्ब। सो ये डिस्टर्बेंस भी गट को हमेशा इफेक्ट करता है और उसके वजह से हमारा हेल्थ इफेक्ट होता है। 41, द ब्रेन गट एक्सिस बोलते हैं। तो ब्रेन और बॉडी और माइंड का जो कनेक्शन है ना, वो इसलिए बनता है क्योंकि गट में एक न्यूरॉन लेयर, ब्रेन का जो लेयर है ना, वो न्यूरॉन लेयर रहता है। और इमोशन जब बहुत हाई होता है तो स्टमक रिएक्ट करता है। सो ये हमारे मन में हमें रखना चाहिए। और गुड न्यूज जो आते हैं तो तुरंत चलो पार्टी करते हैं, बात खाते हैं, खाते हैं। सो दिस सॉर्ट ऑफ रिएक्शंस कम ड्यू टू द इनपुट इन अवर ब्रेन। सो 42, सिमुलेटिंग अग्नि थ्रू फूड। तो कौन से चीजें हम खाएं जिसकी वजह से हमारा अग्नि अच्छा रहे, उसके बारे में अगर हम सोचते हैं तो स्पाइसेस जो है, डाइजेस्टिव स्पाइसेस जैसे हैं जिंजर, अदरक, पेपर, काली मिर्च, सिनेमा, दालचीनी, क्लोव्स, लवंग, नटमेग, पेपर, चिल्ली, कार्डमम, bay leaf, क्यूमिन, ये सब जो चीजें हैं, गार्लिक, टर्मरिक, ये सब अग्नि का वर्धन करते हैं और डाइजेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आप बाहर के जो खाने के बारे में सोचते हैं और इंडियन खाने के बारे में सोचते हैं, तो ये हमें जरूर पता चलता है कि जो हमारे स्पाइसेस है, सांभर है, रसम है या दाल है, कुछ भी है, तो हम जो बनाते हैं गरम मसाला है, ये कॉम्बिनेशन है और इसके वजह से वी आर वेरी हेल्दी। ये कोरोना में हमें ये प्रूफ मिला है कि इंडियंस में हेल्दी, घर पे ये खाना खाने से काफी लोगों को कोविड कंट्रोल में रहता था या नहीं था, क्योंकि बाहर के लोगों में देयर वाज अ बिग इफेक्ट ऑफ कोविड। ये जो मसाले हैं ये सब अग्निवर्धक हैं और हमारे शास्त्र के वजह से हमें ये ज्ञान मिला है। ये सब फूड को कुकिंग करने से और डाइजेस्टिव जूसेस बनाने से और डाइजेस्ट करने में बहुत मदद करता है। गर्म पानी खाते समय पीने से भी डाइजेशन बहुत अच्छा रहता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। धात्वाग्नि मीन्स मेटाबॉलिक फायर, जो धातु है हमारे शरीर में सप्त धातु है। तो सिर्फ अग्नि या जठराग्नि नहीं पर धात्वाग्नि भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसी हाउ ब्यूटीफुल इट इज कि वहां पे जो प्राइमरी डाइजेशन हो जाता है, फिर उससे जो भी धातुएं बनती है जैसे है रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, तो ये सब के लिए भी उसके अंदर एक अग्नि है। जो मेन वो डाइजेस्टिव प्रोडक्ट आता है, तो रस, रस अग्नि से रस को जो चाहिए वो निकलता है। रक्त धात्वाग्नि क्या निकलते हैं, रक्त के जो चाहिए कणों वो धात्वाग्नि से, रक्त धात्वाग्नि से। ऐसे पित्रोत्तर जो धातु है उसका जो अग्नि है उसके वजह से सारे टिश्यूज ठीक तरह से बन पाते हैं। बॉडी सो इंटेलिजेंट नो, जिसको जो चाहिए वो देते हैं और उसको उससे पूर्ति मिलता है, तो शरीर अच्छा और स्वस्थ रहता है। इसलिए हमारे खाने में जो है वो सप्त धातु के लिए जो चाहिए, बैलेंस्ड फूड जो हम कहते हैं ना, वो बैलेंस फूड की बहुत जरूरत होती है। एक्सप्लीज।
ऋतु और अग्नि। अभी ऋतु और अग्नि जो है, ब्यूटीफुल साइंस, आचार्य ने हमें इतना ज्ञान दिया है कि ऐसे नहीं कि चलो अग्नि के हिसाब से खा लो, नहीं, ऋतु का भी जो इन्फ्लुएंस है वो हमारे अग्नि पे रहता है। इसलिए जिस समय जो ऋतु है उसके अनुसार हमारा जो अग्नि है वो जलता है, और उसके अनुसार हमें खाना खाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, विंटर, विंटर में जो है ना, स्रोत संकुष्ट हो जाता है, और वो जो अग्नि है ना अंदर, इट इज गेटिंग ट्रैप्ड है। सो ट्रैप होने से क्या होता है, बॉडी के जो चैनल्स है, नाड़ियां हैं, वो संकुचित हो जाते हैं, तो भूख बहुत लगती है। तो हेमंत या विंटर में क्या खाना चाहिए, हेवी चीजें खाना चाहिए, ऑयली खाना चाहिए, और स्वीट, सोर, सॉल्टी, घी है, दूध है, सूप है, और फर्मेंटेड आइटम, ये सब इस ऋतु में अच्छी तरह से डाइजेस्ट होता है। तो ऋतु का असर जो हम पे है उस पर भी उतना ध्यान दिया गया है हमारे शास्त्रों में, ये कहीं और मिलता नहीं है। आयुर्वेद का स्पेशलिटी है। फिर आता है वसंत ऋतु। वसंत ऋतु में क्या है, अग्नि एकदम मंद हो जाता है, और अग्नि मंद होने से बिकम्स लिक्विड, तो कप बनता है। ये जो कप बनता है वो पानी की तरह होता है, तो अग्नि पे पानी चढ़ता है तो वो एकदम वीक हो जाता है। तो उस समय खाएं तो वो पचता नहीं है। तो हमें लाइट खाना चाहिए, जो गर्म है उसको खाना चाहिए, ड्राई फ्रूट खाना चाहिए, बाकी हनी, जिंजर, क्रिकट, ये सब खा के हमें अपने अग्नि को ठीक तरह से रखना है। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रिवेंशन। अग्नि और ऋतु, उसके बारे में बाद में अगर हम ग्रीष्म ऋतु में जाए तो वो मॉडरेट होता है, वीक होता है, मंदाकिनी होता है, पर थोड़ा बेटर। तो वहां पे जो ग्रीष्म है हॉट होता है, तो हमें सॉलिड खाने का मन नहीं करता है, हम ज्यादा पानी पीते हैं, जूस पीते हैं, लिक्विड पीते हैं, सूप्स पीते हैं। तो ये सब चीजें, बटर मिल्क और कोकोनट वाटर, इसके ऊपर हमारा ध्यान अधिक जाता है, तो हम सॉलिड कम खाते हैं और लिक्विड ज्यादा लेते हैं। रेनी सीजन में बहुत ही वीक होता है, तो हमें गर्म और घी, जिंजर, कुट्टी, तक्र, ऐसी चीजें लेना पड़ता है। शरद में पित्त ज्यादा होता है, तो हमें स्वीट, बिटर और एस्ट्रिंजेंट खाना, शुगर कैन जूस, ऐसी चीजें लेना चाहिए। बहुत खट्टा या बहुत पंजेंट, दैट इज तीखा खाना नहीं खाना चाहिए। लास्ट प्री मानसून जो है वहां पे अग्नि विषम अग्नि के जैसे होता है, जो फ्लिकरिंग होता है। तो यहाँ पे जो इजीली डाइजेस्ट होता है ऐसा खाना लेना चाहिए, और खास करके थोड़े थोड़े अमाउंट में खाना लेना चाहिए, स्पाइसेस भी बहुत नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हाँ, अभी खाने के बारे में तो हमने बात कर लिया, तो अभी मोशन के बारे में बात करते हैं। मोशन जब ठीक होता है, मोशन एक हमारे जो हेल्थ का थर्मोमीटर है। अगर मोशन ठीक है तो अग्नि ठीक है, अगर कॉन्स्टिपेशन है तो तीक्ष्णाग्नि है, अगर लूज मोशन है तो अग्नि बहुत मंद है, उसमें डाइजेशन ठीक तरह से नहीं हो रहा है, और अगर आईबीएस है तो विषम अग्नि है। तो ये जो मोशन है वो हमारा स्वास्थ्य का एक इंडिकेटर है। तो इसके वजह से क्या होता है, हम डायग्नोस करके ओके मेरा पचन नहीं हो रहा है तो मुझे आई हैव टू टेक से पेपर रसम और सूप, जैसे पेपर ज्यादा डाल के सूप लेना है, आज मुझे खाना नहीं खाना है, उपवास करना है, लाइट खाना है। ये सब जजमेंट लेके हम हमारे हेल्थ को डिजीज में कन्वर्ट होने से बचा सकते हैं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सप्लेन प्लीज। टिडबिट्स। अभी छोटी छोटी बातें, जैसे आजकल तो ये एक फैशन हो गया है, नहीं नहीं हम तो स्वीट नहीं खाते, स्वीट नहीं खाना चाहिए, स्वीट से शरीर बढ़ता है, डायबिटीज हो जाता है। स्वीट को लेकर करने की जरूरत नहीं है, और स्वीट हमेशा बर्फी और लड्डू ऐसे ही नहीं होते, चावल हो, मीट हो, जैगरी हो, फ्रूट्स हो, सब में थोड़ा स्वीट होता है। और सब स्वीट को वेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो रेजुनेशन होते हैं, न्यू न्यू सेल्स के जो फॉर्मेशन होते हैं, इसमें मधुर रस के सिवा फॉर्मेशन होना मुश्किल है। तो वो तो बेस है। जब हम रस के बारे में बात करते हैं तो क्या बोलते हैं, मधुर, अम्ल, लवण,
कटु तिक्त कषाय, तो सबसे पहले मधुर आता है, तो मधुर रस का तो इम्पोर्टेंस देना ही चाहिए। सो डोंट हेट स्वीट्स। और बॉडी जो बनता है, इसमें बोन्स है, जॉइंट्स है, सेंस ऑर्गन्स है, सबके लिए लुब्रिकेशन चाहिए। तो तेल चाहिए ना। आजकल तो ये फैशन टॉक है, नहीं तेल खाने से शरीर ठीक नहीं होता है। अरे बाबा, थोड़ा तेल थोड़ा घी होना चाहिए, वरना इतना शरीर ड्राई हो जाता है कि हमें जॉइंट का क्रीपिंग सुनाता है। अभी तो क्लिनिक में इतने सारे पेशेंट्स आते हैं, घी 5 टीस्पून में नहीं, 2 ड्रॉप्स डालते हैं, 2 ड्रॉप। सब कैसे लुब्रिकेशन आएगा ना, तो उससे तो हमें फायदा नहीं होता है। तो प्रोटेक्शन के लिए, प्रिवेंशन के लिए घी होना चाहिए, थोड़ा बहुत तेल होना चाहिए। कभी कभी तला हुआ खाने से कोई आकाश नीचे गिर नहीं जाता है, तो ये जरूरी है। ओके। और फिर एटलीस्ट वीक में एक बार तो बड़ा पायसम होना चाहिए, जैसे हम लोग बड़ा या कुछ भी ऐसे तला हुआ और स्वीट, एटलीस्ट वीकली वंस तो होना चाहिए। 49 प्लीज। अभी न्यू ईयर के वैक्सीन के बारे में बात करता हूँ। जैसे कि वैक्सीन तो सीजन अनुसार ये लोग वैक्सीन देते हैं एलोपैथी में। तो आयुर्वेद में वैक्सीन कैसे होता है, तो एक छोटी चीज एग्जांपल के लिए बता देती हूँ कि अप्रैल में जो साउथ इंडिया में जो न्यू ईयर होता है ना, तब फर्स्ट दिन क्या करते हैं कि स्नान वान करके भगवान के सामने आके वहां पे नीम के पत्ते और गुड़ का मिश्रण बना के रखते हैं। तो पहले वो खा के बाद में और कुछ खाते हैं। तो क्यों? दैट इज लाइक वैक्सीन। न्यू ईयर के बाद जो ऋतु है, वहाँ इंटेंस समर की वजह से ह्यूमिडिटी और पित्त को एक्यूमुलेट करता है, और इसके वजह से बॉडी में वेरियस जो रैशेस, रेड रैशेस, स्किन का डिजीज है, एक्ने है, इन्फ्लेमेशन है, वीक बॉइल्स है, ये सब जो स्किन के डिसऑर्डर्स है वो सीजन में आता है। तो आने से पहले ही ऑन द न्यू ईयर डे दे गिव अस द नीम एंड जैगरी। इसके वजह से वैक्सीन के तरह ये इफेक्ट होके हमारे शरीर में ये डिजीज आने से रोक सकती है। ऐसे एवरी ऋतु के चेंज में अलग अलग चीजें हमारे शास्त्र में दिखाया गया है। फिफ्थ, सिंपल आयुर्वेदिक प्रिंसिपल के बारे में बात करते हैं। तो जनरली हमें तो 4 से 6 दिखते हैं, तो एनर्जेटिक जो वातासेकल है उसको हम यूज कर सकते हैं, यूटिलाइज करते हैं। शरीर एनर्जी से भरा हुआ होता है, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें ब्राह्मी में उठना चाहिए। रात को 11 बजे से पहले सो जाना चाहिए, क्योंकि वो टाइम कफा साइकिल है, तो नींद के लिए काफी बेहतर होता है। और जो खाने का समय है, जो मैक्सिमम सबसे बड़ा खाना जो होता है, वो 11 से 2 के बीच में होना चाहिए, क्योंकि वो कितना समय है, और हम जो भी खाते हैं वो अच्छी तरह से डाइजेस्ट होने के लिए उस समय में अर्ली इज मैक्सिमम। सो जो सबसे मेन डिशेज, सभी लोग क्या बोलते हैं कि ब्रेकफास्ट मेन फूड होना चाहिए। ब्रेकफास्ट मेन फूड होने होने से वहां का पित्त का समय नहीं होता है। तो मेन फूड हमें ब्रेकफास्ट नहीं होना चाहिए। मेन फूड 11 to 2 जो नून में हम खाना खाते हैं, वो सबसे ज्यादा बेस्ट होता है। ठीक तरह से खाना खाना चाहिए, ठीक जगह पे खाना चाहिए, और जो क्वांटिटी है वो क्वांटिटी ठीक क्वांटिटी में लेना चाहिए। बस हमेशा सिर्फ 3/4 खाना चाहिए। 3/4 यानी क्वार्टर पोर्शन तो हमें खाली रखना ही चाहिए। उसी के वजह से समक कॉन्ट्रैक्ट एक्सपांड हो पाता है। अभी 3/4 जो देते हैं उसमें भी मिक्स होना है, तो आधा सॉलिड और आधा लिक्विड होना चाहिए। आधा सॉलिड कब होना चाहिए? जब हमें बहुत भूख लगी हो ना, तभी आधा सॉलिड और आधा लिक्विड। और अगर भूख कम हो तो ओनली 1/4 सॉलिड और लिक्विड ज्यादा होना चाहिए। ये प्रपोर्शन में जब हम लोग खाना खाते हैं, तो डाइजेशन विल बी रियली गुड एंड परफेक्ट। ये मन में हमेशा रखना चाहिए। प्रॉपर डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म और सर्कुलेशन के लिए दोष और धातु, सब एक्सरसाइज, सब मॉडरेशन में, मीडियम लेवल में होना चाहिए। ज्यादा भी नहीं होना चाहिए और कम भी नहीं होना चाहिए। उसके बाद में वेग के बारे में शास्त्र बात करता है। तो अधारणीय वेग, जैसे यूरिन हो,
यॉर्निंग हो, भूख हो, प्यास हो, आंसू में, स्लीप, मोशन जाने में, सीमेंट में, और जो गैस है, वॉमिटिंग है, ये सब चीजों को हमें रोकना नहीं चाहिए, क्योंकि ये रोकने से जो वायु का वेग होता है वो अंदर ट्रैप हो जाता है, जिसके वजह से काफी डिजीजें होती है। तो वो अनसप्रेसेबल परचेस नहीं करना चाहिए। 51 प्लीज। सप्रेसेबल अर्ज जो हम बोलते हैं ना, तो उसमें वाक, मन और शरीर। मन में जो आए बोलते नहीं रहना चाहिए, जो मर्यादा में हमें रहना चाहिए वो हमेशा होना चाहिए। हम जो बात करते हैं उनसे किसी को दुख या कष्ट नहीं होना चाहिए, जो बोलते हैं सत्य होना चाहिए। ये सब बहुत बहुत इम्पोर्टेंस है। और इसके वजह से जो इम्बैलेंस होता है सोसाइटी में या अपने आसपास, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। मन शांत होने के लिए, मन अच्छा होने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए, प्यार होने के लिए, लैंग्वेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो हम जो बोलते हैं अच्छा बोलना चाहिए, अगर कुछ डालते हैं तो भी अच्छे वर्ड्स से हम समझा सकते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हेल्दी के लिए दो चीज इंपॉर्टेंट है। एक, हमें ना बोलने को सीखना है। उन्होंने दे दिया, अभी खाया है, पर मैं ना नहीं बोल सका तो ज्यादा खा लिया, वो ठीक नहीं है। जितना पेट में जगह हो उतना ही खाना चाहिए। और कॉन्स्टिपेशन कभी नहीं होना चाहिए। कॉन्स्टिपेशन होने से शरीर में इट इज लाइक अ ट्रैफिक जैम, वहां भी जैम होता है और सारे रास्ते भी जैम हो जाते हैं। तो कॉन्स्टिपेशन नहीं होना चाहिए। नींद प्रॉपर समय में होना चाहिए, एंड बेस्ट इज 5 to 8 आवर्स होना चाहिए। 10 और 6 के बीच में यू शुड स्लीप, दैट इज द बेस्ट टाइम। ब्रह्मचर्य में वो फिजिकल और सेक्सुअल एक्टिविटीज मिसयूज भी नहीं करना चाहिए, यूज भी नहीं करना चाहिए, बहुत ज्यादा और बहुत कम भी नहीं होना चाहिए। उसका जो पवित्रता है प्रोजनी के लिए, उसको मन में रखे। यू आर सपोज टू लीव योर लाइफ। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। वेदवाहिनी जो हम फूड के रेजिमेंट कहते हैं, फूड कैसा होना चाहिए, टेबल पे जो खाना आता है वो कैसा होना चाहिए, गर्म होना चाहिए, वार्म होना चाहिए, उसमें स्निग्धता होनी चाहिए और क्वांटिटी ठीक होना चाहिए, बहुत नहीं होना चाहिए। कभी कभी लाड़ प्यार में बच्चों को फोर्स करके बहुत खिलाते हैं। अगर नहीं खाते हैं तो प्रीवियस जो खाना है वो डाइजेस्ट होना चाहिए। डाइजेस्ट के बाद ही नेक्स्ट खाना खाना चाहिए। और खाना का जो इंग्रेडिएंट्स है, ऑपोजिट विरुद्ध आहार नहीं होना चाहिए, जैसे कि मिल्क और टैमरिन। ओके। और जहाँ हम बैठते हैं वो अच्छी जगह होना चाहिए, जल्दी पे भी नहीं खाना चाहिए और बहुत स्लो भी नहीं खाना चाहिए। बातें करते करते खाते हैं तो 2 घंटा निकल जाता है। ये लंच मीटिंग्स जो होते हैं ना, वो एक्चुअली गलत है, क्योंकि उसमें 2-2 3 3 घंटे ऐसे ही निकल जाते हैं। और खाना धीरे धीरे ऐसे खाते हैं तो बहुत सा खा लेते हैं, इससे बहुत अच्छा होता है। और खाने पे हमारा ध्यान ज्यादा होना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। फूड जो मौसम है, फिजिकल और माइंड, फिजिकल बॉडी और माइंड दोनों के लिए समान होना चाहिए। सॉलिड फूड हाफ, लिक्विड वाटर और लास्ट वाटर फ्री होना चाहिए। और बॉडी लैंग्वेज सबसे ज्यादा ये है कि हमारा जो बॉडी का लैंग्वेज है, बॉडी हमें तो प्लीज डोंट ईट। अगर ये लगता है कि नहीं आज सिर्फ सूप खा के रहना है, मुझे कुछ खाना नहीं, तो नहीं खाना है, दैट विल बी द राइट थिंग। पंचकर्मा, पंचकर्मा के बारे में तो ऋषियों ने बताया कि जो ऋतु के अनुसार जो पंचकर्मा है वो प्रिवेंशन के लिए बताया है, ताकि उस सीजन में जो दोष एक्यूमुलेट हो वो दोष को हम बाहर निकल पाए। तो वसंत ऋतु में वमन, ग्रीष्म ऋतु में विरेचन, हेमंत और शिशिर में बस्ती, नस्या कफा बाहर निकालने के लिए, शरद में रक्तमोचन। ये सब हमें अगर ऋतु अनुसार हम करते हैं तो वी विल ऑलवेज रिमेन हेल्दी। और सीजनल पंचकर्मा, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सीजनल पंचकर्मा में नेचुरल जो सीजन का रिदम है ना, उससे जो डिटॉक्सिफिकेशन होना है वो दोष बाहर निकल जाता है, इम्यूनिटी बढ़ता है, दोष सब बैलेंस होते हैं।
मेंटल और फिजिकल अच्छा रहता है और रेजुनेशन और वाइटलिटी मिलता है। नेक्स्ट प्लीज। हाँ, जो लोकल जब भी हम कुछ खाते हैं ना, तो हम जिस एरिया में रहते हैं उस एरिया का दोष हमारे को लागू होता है। तो जो इम्पोर्टेड है हम खाते हैं, तो वहाँ का जो वास्तविक तक है, वहाँ का जो सॉइल है वो सब अलग रहता है। तो वो यहाँ आके हम जिसको खाते हैं वो हमें, इट विल नॉट बी सो एडवांटेजेस टू अवर बॉडी। तो इम्यूनिटी और एंजाइम के फंक्शंस ठीक तरह से हो, तो हमारे आजू बाजू हमारे जो देश में जो मिलता है वो खाने से इट इज ऑलवेज बेटर। अभी ये लोग फ्रीज करके सारे सीजन में सारी चीजें मिलती है, तो ये गलत है। जो हमें फ्रेश मिलता है वही हमें खाना चाहिए, सीजन के अनुसार खाना चाहिए। इसी टाइम में हमारा भी उसको बचने में ठीक रहता है। और जो स्पाइसेस है, ये स्पाइसेस और डेयरी प्रोडक्ट्स जो है, वो अगर हम ओवर कुकिंग ज्यादा करते हैं तो वो उसके जो तत्व हैं वो निकल जाते हैं। तो ये हमें अवॉइड करना है, ओवर कुकिंग सब अवॉइड करना है। और विटामिन सी जो हमारे शरीर के लिए चाहिए, वो फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में ही रहते हैं। थोड़े दिन के बाद वो कम हो जाता है। फ्रेश होना चाहिए, स्टोर नहीं होते। एप्पल जो बाहर से आते हैं ना, वो बैग से कोटेड होते हैं। अगर हम जो लोकली मिलता है वो हमें लेना चाहिए। नेक्स्ट, तो पानी हम कॉपर वेसल में रखते हैं, वो बहुत अच्छा होता है। इसको एक प्रिवेंटिव हिसाब से बताते हैं। 6 से 8 घंटे ताम्र के पात्र में पानी रख के सुबह उठ के उसको पीना चाहिए। उससे वो कॉपर जो है ना, वो थोड़ा पानी में घुलता है और इससे एक्टिव बैक्टीरियल अल्कलाइजिंग और रेजुनेटिंग प्रॉपर्टीज मिलता है। ये बात फिर कफ को, तीनों को समान रखता है और अग्नि को ठीक तरह से रखता है, डिटॉक्सिफाई करता है। तो ताम्र वाले पानी पीना बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा सिल्वर वेसल में भी काफी बताया है कि, नेक्स्ट लाइक दिस, सिल्वर का जो वेसल है इससे हम जो पानी पीते हैं वो बहुत अच्छा होता है। जैसे कि दोषास को बैलेंस करता है, प्यूरिफिकेशन, माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज को, बैक्टीरिया और जर्म्स को वो मारता है, इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथन करता है, इन्फेक्शन और इलनेस को फाइट करता है, और जो कॉलेरा टाइफाइड ऐसे सब है ना, उसको दूर करता है। अभी आप देखते हैं तो जब भी हम मंदिर जाते हैं कि शादी में, तो सब लोग सिल्वर ज्यादा यूज करते हैं, क्योंकि ये गट हेल्थ को ठीक रखता है, ब्लोटिंग में आने देता है, इंडाइजेशन, गैस्ट्राइटिस ये सब नहीं होता है। इसमें एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज और फ्री रेडिकल्स होता है। सो ये जो सिल्वर है वो, उससे पॉजिटिव एनर्जी निकलता है। और ये जो प्रॉपर्टीज है, ये वो पानी सिल्वर के अंदर जो पानी रहता है ना, इसमें उसका असर रहता है। तो मंदिर में ये सब जो अभिषेक करते हैं, पानी देते हैं, इसमें वो सिल्वर का भी अंश आता है और वो हेल्थ के लिए सेफ है। तो इसलिए उसमें ही दूध हो, दही हो, सब डाल के वे लोग उससे अभिषेक करके सिल्वर वेसल से पूजा वूजा करते हैं। तो उसका जो पॉजिटिव एनर्जी है, इसके लिए भी वो फेमस है। इसलिए सिल्वर वेसल ज्यादा यूज करते हैं। पॉजिटिव एनर्जी, प्रॉस्पेरिटी और स्पिरिचुअल ग्रोथ, तीनों के लिए वो बहुत काम करता है। नेक्स्ट, हेल्थ ड्रिंक्स के बारे में बात करते हैं। तो बहुत ज्यादा भी नहीं होना चाहिए और बहुत कम भी नहीं होना चाहिए। जो ऑर्गन्स और टिश्यूज को नरिश करता है ऐसे होना चाहिए। आजकल इतना ज्यादा वो हेल्थ ड्रिंक पहले, सबसे पहले उठ के हेल्थ ड्रिंक, दिन में रात में ऐसे टू मच वाटर ज्यादा हो जाता है, टू मच लिक्विड ज्यादा होता है, तो बीमार पड़ते हैं। तो हेल्थ ड्रिंक बहुत भी नहीं, कम भी नहीं, ठीक तरह से लेना चाहिए। नेक्स्ट प्लीज। तो इसमें आई थॉट आई विल गिव यू सम सिंपल थिंग्स। एक एक दिन एक एक ऑर्गन को पुष्टि करने के लिए ऐसे यूज करते हैं। जो ब्रेन है, तो शंख पुष्पी, ऑरेंज, कैरेट, दार्डिन, तुलसी, ब्राह्मण, ये सब ब्रेन के लिए काम आता है। किडनी के लिए कोकशूट बहुत ही फेमस है। लिवर के लिए लेमन और जिंजर टी। हार्ट के लिए अर्जुन सबसे प्रसिद्ध है, सबको उसके बारे में मालूम है। नेक्स्ट, स्किन।
स्किन में आंवला, टर्मरिक, जिंजर, एलोवेरा, पोमोग्रेनेट, कोई भी ये कॉम्बिनेशन हम यूज करते हैं। एचबी काउंट इंक्रीज करने के लिए ये जो रेजिन्स है, फिग्स है और 2-3 डेट, ये हम ब्लड के लिए यूज करते हैं। मसल के लिए आलमंड है, सैफरन है, कार्डमम है। बोन्स के लिए फिग्स बहुत अच्छा कैल्शियम और पोटेशियम देता है। हार्ट के लिए अर्जुना मिल्क है। तो हम एक नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। बोन हेल्थ के लिए एक हलवा मेंशन किया गया है, विच आई फील इज अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन, सो आपके साथ शेयर करती हूँ। उड़द दाल 1 कप, रागी आधा कप और तिल का सीड जो है वो आधा कप, इसको ग्राइंड करके पाउडर कर दे और डेट को 15 डेट और ब्लैक रेजिन्स को सोक करके फिर उसको ग्राइंड कर लेना चाहिए। 2 टेबल स्पून घी में ये सब फ्राई करके कोकोनट मिल्क या काउस मिल्क डाल के इसको हलवा बनाते हैं, तो बोन के लिए ये बहुत ही अच्छा है। तो आजकल हम देखते हैं कि देयर इज अ लॉट ऑफ कैल्शियम डेफिशिएंसी एंड बोन इश्यूज बच्चों में भी ज्यादा होता है। तो ये शायद इज अ वेरी गुड प्रिवेंटिव इज व्हाट आई थॉट। नेक्स्ट, टेंडर कोकोनट वाटर। आपको मालूम है टेंडर कोकोनट वाटर इज वन ऑफ द फेमस थिंग्स विच एवरीबडी ड्रिंक। उससे हमें ठंडक भी मिलता है, पोटेशियम, सो मेनी थिंग्स। सो उसका तो सारा बड़ा लिस्ट है, करना चाहिए। शरीर के प्रॉब्लम की है, पोटेशियम ज्यादा हो और यूरिनेशन ज्यादा हो, डायबिटिक लोग हो, उनको कोकोनट वाटर नहीं लेना चाहिए। बाकी सब लोगों को कोकोनट वाटर ले सकते हैं। 66 प्लीज। अभी कुक फूड में हमें क्या खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, ये सब देखते हैं। तो डूज एंड डोंट्स, जो फ्रेशली कुक फूड हो वही खाना चाहिए। ओल्ड स्टेल फूड को नहीं खाना चाहिए। कुकिंग करके 3 घंटे के अंदर खाना खा लेते हैं, दैट इज दी बेस्ट। ये सीजन के अनुसार और लोकली जो इंग्रेडिएंट्स मिलते हैं वो खाना ज्यादा बेहतर है। जो फ्रोजन है, फ्रिज में रख के बहुत दिन के बाद खाते हैं वो ठीक नहीं है। लंच 12 से 1 बजे के बीच में खाना चाहिए। जो स्पाइसेस है, चिली गार्लिक, काफी लोग इसको बहुत ज्यादा यूज करते हैं, वो स्टमक के लाइनिंग को काफी परेशान कर देता है। तो बहुत ज्यादा चिली या नहीं होना चाहिए, संयम होना चाहिए। और सनसेट 7 बजे के बाद खाना नहीं खाना चाहिए। अगर ऑफिस से आते देर हो जाए और खाना देरी से खाते हैं तो प्लीज हाफ एन आवर या 45 मिनट्स बाहर वॉकिंग के लिए जाना चाहिए। दिस इज इम्पोर्टेंट। काम एटमॉस्फेयर में खाना चाहिए। गड़बड़ गड़बड़ टीवी देख के जोर जोर से झगड़ा करके कभी खाना नहीं चाहिए। काम एटमॉस्फेयर में खाना चाहिए। ब्रेकफास्ट 7 से 9 तक और डिनर 7 बजे के अंदर खाना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेचुरल अर्जेस जो है वो एक प्रॉब्लम है। अभी कोई मीटिंग में जाते हैं या ऑफिस में होते हैं तो ये लोग समझते हैं कि अगर वी गो फॉर नेचुरल, जैसे कि टॉयलेट जाना है या बाथरूम जाना है, कॉफ करना है, स्नीज करता है, तो ये लोग रोकते हैं, नहीं हमें तो गंदा नहीं करना चाहिए बिकॉज दैट इज नॉट गुड मैनर्स। पर इसके वजह से जो वायु है वो अंदर ट्रैप हो जाता है और काफी डिजीजेस इसके हिसाब से, स्पेशली हार्ट डिजीज में सब आचार्य अचारक सुचित और वाहवत सब लोगों ने ये मेंशन किया है। तो जो ब्रीदिंग है, आंसू है, कॉफ है, ये इससे हार्ट डिजीज और श्वास जो है, जो ब्रेचिंग डकार को रोकने से होता है। सीमेन और दस्त को रोकने से हार्ट पे दबाव पड़ता है। गैस हार्ट जो निकलता है और वॉमिटिंग जो होता है उससे कफ और ब्रेथलेसनेस ज्यादा होता है रोकने से। और मोशन रोकने से श्वास चढ़ता है। स्नीजिंग, ब्रीदिंग डिफिकल्टी, स्नीजिंग बंद करने से ब्रीदिंग डिफिकल्टी ज्यादा होता है। तो इसके ऊपर हमें थोड़ा ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट, इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन आज बहुत कॉमन है, सब लोग वैक्सीन लेते हैं और इट इज कॉमन सब चीजों के लिए, सो मेनी डिजीज के लिए वैक्सीन लेते हैं और ये सब। आयुर्वेद में कौन सा इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है? तो स्वर्ण प्राशना जो प्रोग्राम है वो आयुर्वेद का इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है हर पुष्य नक्षत्र में। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हर पुष्य नक्षत्र में इसको दिया जाता है। वो नक्षत्र में देने से इम्यूनाइजेशन परफेक्ट होता है। वैक्सीन जब हम देते हैं तो अंदर के जो जर्म्स है उसको फाइट करके प्रोटेक्शन देता है और ये फ्यूचर इन्फेक्शन से भी प्रोटेक्ट करता है। और नेक्स्ट स्लाइड प्लीज।
स्वर्ण बिंदु जो प्रार्थना है वो हर बच्चे को एक्चुअली एज सून एज बर्थ इज ओवर तब तुरंत ये सिस्टम है कि पिताजी जब बच्चे को गोद में लेते हैं तो थोड़ा सोने का ऐसे घिस के उसको चखाते हैं। दैट इज द फर्स्ट इम्यूनिटी ऑफ द चाइल्ड। उसके बाद हर पुष्य नक्षत्र पे उनको स्वर्ण दिया जाता है। हनी और घी का जो मिश्रण है हनी इक्वल क्वांटिटी में दिया जाता है और आजकल उसके साथ ग्रामीण से एज के अनुसार डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन बना के सबको देते हैं। इससे इंटेलिजेंस, चिल्ड्रन का स्ट्रेंथ और इम्यूनिटी काफी बढ़ता है। और हमने खुद ऐसे देखा है कि स्वर्ण प्राशन जो बच्चे लेते हैं उनको अगर रिपीटेडली डिजीज आते हैं तो 2-3 महीने के बाद वो बंद हो जाता है। इट इज वेरी इफेक्टिव। स्वर्ण बिंदु प्रार्थना से हमें बेटर मेमोरी, फोकस, इम्यूनिटी, एपिटाइट, हेल्थ, वेट गेन, अस्थमा, एलर्जी, ब्रेथलेसनेस, ये सबसे हमें मुक्ति मिलती है। और ये तो बनता है घी हनी से, ये सबको पता है। और श्री हॉस्पिटल में हम लोग इसको 3 भाग में बांटे हैं। शिशु के लिए ब्रेन और इमोशनल डेवलपमेंट के लिए देते हैं, बाला जो है वो फिजिकल और इम्यून डेवलपमेंट के में देते हैं, युवा को हार्मोनल बैलेंस और इमोशनल स्टेबिलिटी के लिए देते हैं। तो हम 3 प्रकार के स्वर्ण प्रार्थना देते हैं। और कृष्ण नक्षत्र में देने से दैट इज इट गिव्स द हाईएस्ट एनर्जी पोटेंसी देता है, इसलिए कृष्ण नक्षत्र में देता है। अब है रसायन में, तो रसायन में जो रेजुनेशन हेल्थ है, लॉन्गिविटी है, वाइटलिटी है, रसायन से ये सब मिलता है। तो एंटीऑक्सीडेंट का जो प्रॉपर्टीज है वो हेल्प करता है और फ्री रेडिकल्स और इसके एक्शन को मिटाता है। और एक जो सबसे मुख्य जो हम लोग काफी शास्त्र में लिखा है, तो ऋतु हरितकी एक प्रिवेंटिव सीड है जो हर सीजन में हम दे सकते हैं। ये हरितकी क्या करते हैं कि एक एक सीजन में एक एक अनुपान के साथ देते हैं। तो शिशिर ऋतु में तितली के साथ, बसंत ऋतु में हनी के साथ, ग्रीष्म ऋतु में जैगरी के साथ, वर्षा ऋतु में रॉक सॉल्ट, सैलम नमक और पानी के साथ, शरद ऋतु में शुगर के साथ और हेमंत ऋतु में ड्राई जिंजर के साथ दिया जाता है। इसमें टैनिन, फ्लेवोराइड्स और सैपोनिन होता है जिसके वजह से डाइजेस्टिव ट्रैक और बाउल मूवमेंट्स ठीक होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स मिलते हैं। 81st स्लाइड। तो हमने जो मधुर रसम के बारे में बात किया था, जो तो मधुर रसम में पायसम को हमने बोला था कि अवॉइड नहीं करना है। तो कितने सारे प्रकार के पायसम और स्वीट्स है, जैसे कि दूध का पायसम है और सेवई का, राइस का, खसखस का, अ, और राइस से बनाया गया वो स्वीट शक्कर पोंगल बोलते हैं यहाँ पे, पूरी वाले पायसम, घी बनाना, पुडिंग, केक, बर्फी। और इसी तरह से एपिटाइजर जो है हमारे शास्त्र में या इंडियन कुकिंग में काफी एपिटाइजर्स हैं 82 में, वेर सब टाइप के लेमन राइस हो, मिंट राइस हो, कर्ड राइस हो, पुलाव, सांभर, ये सब जो है वी आर वेरी वेरी गुड डाइजेस्टिव। जिंजर का चटनी बनाते हैं जिंजर से, जिंजर टी है, चुकी कॉफी है, ये सब चीजें इज वेरी गुड एपिटाइजर एंड डाइजेस्टिव जो प्रिवेंटिव रहता है। और सौंफ भी जो हम डाइजेशन के लिए रहता है वो भी बहुत प्रिवेंटिव है। तो ये सब के लिए हमें किसी पुटिंग रहता है। कॉमन मिनरल, अभी सिर्फ हम बात के कप न बता के हम मॉडर्न के लैंग्वेज में अगर कुछ जानना चाहते हैं तो पेशेंट्स जो आते हैं वो बोलते हैं आयरन कम है, कैल्शियम कम है, जिंक कम है, क्या करें। तो उसके लिए दिस चार्ट इज वेरी यूजफुल। जैसे लोग कम हो तो न केवल दवाइयाँ के भी लिस्ट बने हैं, बट अगर हम फूड प्रकार से देखते हैं तो सेसन, डेट्स, गुड़, रागी और दालिम ये सब लोह देता है। कैल्शियम, कैल्शियम सिसमी, मोरिंगा, दूध, गाय का दूध, रागी, आलमंड से कैल्शियम मिलता है। जिंक जो है वो पंपकिन सीड, सिसमी, आंवला और घी से। मैग्नीशियम बनाना, होल ग्रेन, आलमंड्स। आयोडीन है उसके लिए रॉक सॉल्ट, सीवीड और आयोडीन सॉल्ट मिसाइल है। सेलेनियम में ट्रेसिल नट्स और है,
पोटेशियम में बनाना कोकोनट वाटर, वाटर फॉस्फोरस है तो डेयरी सिसमी लेग्यूम, और कॉपर जो है वो वाटर कॉपर वेसल में रखते लेना नट्स और मशरूम में मिलता है। अब इसके बाद हम आते हैं डेली रिचुअल्स 84। तो मॉर्निंग का जो वॉक है, हाँ, वॉकिंग तो सब लोग करते ही हैं, पर अगर हम वॉकिंग कुछ श्रद्धा भक्ति से जैसे मंदिर जाते हैं तो मंदिर में वॉक करना है। कभी कभी जब लोग आते हैं और मैं बोलती हूँ डेली आपको वॉकिंग करना है तो कुछ छूट जाता है, देरी से होता है। मैंने कहा आप एक बाधा रख लीजिए कि मुझे 48 डेज मंदिर में जाके प्रदक्षिणा करना है, मैं आपको मीन्स टेक द vow। तो उससे क्या होगा ना, अपना मन भी उसके साथ लग जाता है कि नहीं मुझे तो करना ही है, मैंने भगवान से कह दिया। तो मॉर्निंग वॉक अगर जा पाए, गार्डन में जाएं, पार्क में जाएं, कहीं पर भी जाएं, अगर मंदिर में जाते हैं आपको बहुत दोनों स्पिरिचुअल और फिजिकल दोनों का श्रेय मिलता है। और मंदिर में प्रदक्षिणा करते समय जो घंटी बजती है, जो धूप का वो होता है, प्रसाद मिलता है, इट इज डेफिनेटली अ कंप्लीट थेरेपी बाय इटसेल्फ। तो मैं तो अपने पेशेंट्स को बोलती हूँ कि ये आप जरूर करना, इससे आपको काफी फायदा रहेगा। भजन कीर्तन करना, भजन कीर्तन में फ्लूड के जो हम वो ताल डालते हैं और भजन करते हैं, तो ये सब चीजों क्लैप करते हैं तो ये सब हार्ट पे भी काम करता है। और दिस इज ऑल्सो वेरी गुड, बोथ वाइब्रेशंस और फिजिकल एक्टिविटी दोनों अपने हेल्थ को बहुत काम आता है। सुबह सुबह उठ के तुलसी पूजा करना, अब ये तो काफी है पर इसके पीछे का साइंस क्या है, सो थोड़ा डीप जाके देखने से पता चलता है कि तुलसी जो है वो ऑक्सीजन देता है 24 आवर्स। तो तुलसी का जब हम प्रदक्षिणा करते हैं, पूजा करते हैं, तो उस समय हमें प्योर ऑक्सीजन सुबह का मिलता है। और जो हम पानी पूजा में डालते हैं, तो ऊपर से आप देखते हैं तो ऐसे पानी डालते हैं तो उससे क्या होता है, जो धार पानी का धार रहता है ना, इसमें सूर्य का किरणें ऐसे आती है तो वो पानी के धार से वो किरणें रेनबो के तरह स्प्लिट होके आता है। और ये जो किरणें हमारे शरीर पर पड़ते हैं वो सप्त चक्र पर पड़ता है तो वो एक्टिवेट होता है। जस्ट इमेजिन, इस जमाने में भी लोगों ने ये समझ के, ऋषियों ने ये बताया है कि ऐसे हो सा है। इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग। तुलसी पूजा के इतना महत्व है। और आजकल ऑक्सीजन गिविंग प्लांट्स पे काफी चर्चा हो रही है, और घर के अंदर ये तुलसी का पेड़ रखते हैं, ऐसे काफी ऐसे ऑक्सीजन देने वाले प्लांट्स रखते हैं। वास्तु शास्त्र का भी इतना ही इम्पोर्टेंस है। पहले ज्योतिष आयुर्वेद का एक भाग था, तो उससे हमें ये भी ज्ञान मिलता था कि कब नेचर हमें सपोर्ट करता है, कब क्या करना चाहिए। विद मेन डोर ईस्ट में या नॉर्थ ईस्ट में हो तो सूर्य का किरण सुबह अंदर आता है तो वो बहुत अच्छा होता है। क्योंकि सो मेनी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, वास्तु शास्त्र का असर शरीर पे है, घर पे है, जीवन पे है। तो अगर फॉलो कर सकते हैं तो कर सकते हैं। इसके बाद आता है एकादशी। अब एकादशी क्यों करना है? मेनी पीपल टुडे कम विद लॉट ऑफ इंडल्गेशन हो, आम हो, शरीर में काफी ऐसे प्रॉब्लम्स है। तो ये जो फास्टिंग की है, तो पहले से ही प्रिवेंशन के लिए बहुत अच्छी तरह से बना दिया गया। वीक में एक बार, एक दिन शाम को, गुरुवार या शनिवार को रात को सिर्फ लिक्विड ले सकते हैं या फिर सम लाइट स्नैक, वरना सिर्फ एक टाइम खाना चाहिए। तो ये जो पद्धति था दैट वाज वेरी गुड, फास्टिंग वंस अ वीक। और एकादशी दैट इज वंस इन 15 डेज, एकादशी के दिन अगर आप फुल डे फास्टिंग करें तो बहुत अच्छा है। एकादशी ही क्यों, ये क्वेश्चन होता है। तो एकादशी इसलिए कि उस दिन जब हम कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष के बारे में बात करते हैं, तो एकादशी के दिन द मून टर्न्स टुवर्ड्स द अदर साइड। ओके, व्हेन इट इज रोटेटिंग इट टर्न्स टुवर्ड्स द अदर साइड। तो इसलिए एकादशी के दिन जो हमारी भूख है, जो हमारा डाइजेस्टिव एंजाइम्स है, वो कम होते हैं। तो इसलिए उस दिन अगर हम उपवास करते हैं तो वो बहुत ज्यादा बेहतर है। इसलिए डेफिनेटली 15 डेज में एक दिन उपवास करना चाहिए। कई लोग मानते हैं तो एकादशी को करते हैं, वरना वंस इन 15 डेज प्लीज डू फास्ट, इट इज वेरी गुड फॉर हेल्थ। और स्टेम सेल थेरेपी ये बहुत ही एक बढ़िया चीज है जो हमें समझना चाहिए। जब बच्चे जन्म लेते थे तो पिछले जमाने में हमारी दादी और ये सब जो है
वो अम्बिलिकल कॉर्ड है ना, उसको ड्राइव करके बचा के रखते थे और तावीज में डाल के रखते थे। तो आज ये जो स्टेम सेल थेरेपी वाले बात करते हैं कि वो स्टेम सेल रखने से हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, किसी को भी बता सकते हैं। तो ये जो हम लोग अम्बिलिकल कॉर्ड रखते थे, वो वही काम करता है। जब भी कोई ऐसे लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज हो या कोई ऐसे प्रॉब्लम हो, तो इसको वो ताबे से निकाल के थोड़ा घिसके हनी या घी के साथ देने से बहुत बहुत बेहतर इसका इफेक्ट होता है। तो इस समय में भी ऋषियों को ये ध्यान था। अभी ये लोग बोल रहे हैं स्टेम सेल स्पिरिट, वी ऑलरेडी न्यू दैट, दैट इज द गिफ्ट ऑफ आवर वेदास फॉर अस। कोविड जब आया था तब हमें पता चला कि जो पुराने जमाने में हम जो रिचुअल्स रखते थे, खाना नहीं खाना चाहिए, जूता नहीं खाना चाहिए, एक्सपोज करके नहीं खाना चाहिए, कपड़े क्लीन होने चाहिए, हाथ पे धो के अंदर आना चाहिए, तभी इतनी सारी बातें कोविड से पहले कि आप लोग तो पुराने के हो, ये तो वो। कोविड आने के तुरंत बाद एवरीबॉडी रियलाइज कि ये जो ज्ञान हमारे पास था वो कितना इम्पोर्टेंट था। दैट वाज रियली वन ऑफ द फैंटास्टिक नॉलेज। और उसके बाद लोग काफी करते हैं जूता या वेस्ट खाना, क्लीन रहना, हाथ पैर धो के खाने का, ये सब अच्छा हुआ। और तो ये कट हो गया। ओके, आई थिंक द वीडियो हैज स्टॉप्ड। हृदय के बारे में अगर हम बात, तो आजकल हृदय की जो प्रॉब्लम्स है वो काफी ज्यादा है। मेनी पीपल, छोटे 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 मीन्स उम्र वाले लोगों को भी ये प्रॉब्लम आता है। तो इसको कैसे हम लोग इसको ठीक कर सकते हैं? तो हृदय रोग के लिए जो हम बोलते हैं कि असर जो ज्यादा होता है वो ओवर एक्सरसाइज। आज तो जिम का इतना क्रेज है कि 1 घंटा दो जिम में जाके करते हैं, तो दिस इज ऑल टू मच। बहुत ज्यादा एक्सरसाइज भी नहीं होना चाहिए, बहुत कम भी नहीं होना चाहिए। और चिंता, और आजकल की डिमांड इतने ज्यादा हैं कि एवरीबडी वांट्स टू हैव द बेस्ट एवरीथिंग। सो ओके चाहिए। तो इसमें इसके लिए हमें हमारे हार्ट पे ये रिस्क होता है। तो ये हृदय रोग को प्रिवेंट करने के लिए क्या क्या करना चाहिए? हमारे जो मन के वेग है, वो एंगर है, फियर है, वरी है, इस सबको हमें सप्रेस करके बहुत अवॉइड नहीं करना चाहिए। ये सब कीप इट माइल्ड, कीप इट इजी। एंजाइटी जो है कंट्रोल है, लस्ट और डिजायर बहुत ज्यादा हो तो उससे भी हमें डिफिकल्ट रहता है। आहार और विहार जो है, मैम सॉरी टू इंटरप्ट यू, डॉक्टर मिथुन का इंटरनेट इशू हो गया है, ही जस्ट गोइंग टू जॉइन बैक इन 2-3 मिनट्स, सो वो स्लाइड शेयर Yes, करेंगे। okay. थैंक यू मैम। Can I continue talking? यस मैम प्लीज। नेचुरल जो बाईपास है वो होता है। हमारे एक मामा जी थे, उसके उसको ये, वो आर्मी में है, तो दे वॉक फॉर सो मेनी किलोमीटर्स एंड फाइटिंग। उनका तो वो सेमिनार ज्यादा होता है ना, तो वो बता रहे थे कि उन लोगों ने ऐसे काफी जवान में देखा है कि जब जो हार्ट में ब्लॉक रहता है ना, तो नेचुरल बाईपास होता है, उससे बाजू में ऐसे काफी ऐसे ब्रांचेस आ जाते हैं, जिसके वजह से हमें वी डोंट हैव टू ऑपरेट। और काफी साइंटिस्ट का ये कहना है कि जो धमनी है, इट हैज टू पल्सेट। अंदर पल्स, ये स्टंट रखने से पल्सेट नहीं हो पाता है। दैट सीम्स टू बी अ रॉन्ग थेरेपी करके काफी आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं। तो वी डू नॉट नो व्हाट इज राइट, बट नेचर हमें प्रोटेक्ट करता है। जब हम काफी एक्सरसाइज करते हैं, वॉकिंग करते हैं, शरीर को ठीक रखते हैं, तो ऑटोमेटिक बाईपास होने के चांसेस अच्छी तरह से है। सो स्लाइड 91 सर, 92।
सो हार्ट अटैक प्रिवेंट करने के लिए अच्छा डाइट, एक्सरसाइज, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, ये सब हमें ध्यान रखना पड़ता है। और वीक हार्ट हो तो लो सोडियम इंटेक होना चाहिए, एक्सरसाइज होना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए। और प्रॉब्लम तो बहुत हार्ट में रख के यू शुड नॉट टॉर्चर योरसेल्फ टू मच, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें रसायन कौन कौन से दे सकते हैं? तो अर्जुन है, वक्त है, पुष्कर है, तांबुल है, आंवला और हरी पत्ती है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है और वी कैन यूज इट एज अ प्रोटेक्टर फॉर अस। आंवला की रसायन जो है, अगस्त्य हरी की रसायन है, शिलाजित है, ब्रह्म और च्यवनप्राश, ये सब भी हार्ट के लिए बताया है। कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए हरिद्रा, कटुकी, शोध, अतिविशा, वचा, दारू हरिद्रा, अर्जुन, गार्लिक, त्रिफला, ये सब चीजें हार्ट के लिए बहुत उत्तम है। और हृदय बस्ती जो हम बोलते हैं, 95th स्लाइड सर, हृदय बस्ती जो हम बोलते हैं ना, वो काफी अच्छा रहता है। कभी भी कोई भी कहाँ पे अड़चन ऐसे कुछ हो तो डेफिनेटली हृदय बस्ती को हम यूज कर सकते हैं। रेस्पिरेटरी इश्यूज के लिए भी ये काफी अच्छा रहता है। 96 स्लाइड सर। नेक्स्ट। तो योगा, योगा में क्या क्या कौन कौन से हम पोज यूज कर सकते हैं? तो चक्रासन, हलासन, कर्णपीरासन, सर्वांगासन, शीर्षासन और विपत्तिकरण, दीज पोजेस आर टू बी अवॉइडेड। ये पोजेस अवॉइड करना चाहिए। चक्रासन, हलासन, कर्णपीरासन, सर्वांगासन, शीर्षासन और विपत्तिकरण, ये अवॉइड करना चाहिए। रिलैक्सेशन के लिए डेफिनेटली मेडिटेटिंग, ब्रीदिंग, योगा और थोड़ी देर बाहर प्रकृति में रहना, एक्सरसाइज करना, कंटिन्यूस वर्कोहॉलिक के तरह 18-20 आवर्स काम नहीं करना है। और ये जो थॉट्स हमारा जो बनता है कंप्लीटली चेंज पे, इस थॉट्स को कट करना चाहिए एक के बाद एक के बाद। अगर कुछ दुखी मन हो तो सिर्फ इसके बारे में सोचते रहते हैं, वी डोंट प्रैक्टिस। तो मेडिटेशन करके रिलैक्स करना बहुत जरूरी है। कभी भी आपको किसी को भी ऐसे लगे मन में, सर 98 स्लाइड, कभी ऐसे लगे मन में कि नहीं बहुत दुखी है, चिंता खाए जा रही है, तो प्लीज चेयर में बहुत देर तक बैठना मत। आपको क्या करना है, तुरंत चेयर से उठ के या तो पानी पीना है या बाहर जाके रोड को देखना है, किसी को फोन करो, दोस्त के साथ बात करो, हस्बैंड वाइफ के साथ बात करो, किसी के साथ भी बात करके ध्यान को 5 मिनट हटा दो। कॉफी पी लो, टी पी लो, जो हम दुखी रहते हैं ना, वो मन बदल जाता है। यू हैव टू चेंज द फोकस इमीडिएटली। जब भी आपको ऐसा लगे कि नहीं मेरा मन खिन्न होता जा रहा है, तो इमीडिएटली प्लीज चेंज द फोकस, दैट हेल्प्स अ लॉट। मैंने काफी पेशेंट्स में ये ट्राई किया है और बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। नेक्स्ट हम जाते हैं, तो क्या क्या हमें फैट जो है बंद करना है? तो एक तो स्मोकिंग, बहुत सॉल्ट, शुगर, सैचुरेटेड फैट, ड्रिंक्स हो, सेडेंटरी हैबिट हो, स्ट्रेस को हमें अवॉइड करना चाहिए। और क्या लेना चाहिए? सात्विक आहार, नींद, शमन चिकित्सा, सत्व, स्ट्रॉन्ग सत्व होना चाहिए, और शोधन चिकित्सा और सीढ़ियाँ, जो चढ़ना उतरना वो सब थोड़ा करने से अच्छा रहता है। तो थोड़ी टिप्स लेडीज के लिए बताती हूँ, 100 स्लाइड आयुर्वेदिक टिप्स जो लेडीज के लिए। जो मंथली साइकिल है ना, वो बच्चों के लिए जो खाने का फैक्ट्री है। और मंथली पीरियड जो होता है जनरली 21 to 35 डेज होता है, रेगुलर इंटरवल में होता है, और जो अच्छा है उसमें पेन डिस्कम्फर्ट कुछ नहीं होता है, इट इज पार्ट ऑफ अवर डेली लाइफ। पर कभी कभी ऐसा होता है कि वो ठीक नहीं रहता है, तो उस समय में हमें क्या क्या करना चाहिए? तो लुब्रिकेशन बहुत जरूरी है। तो एक तो सारे शरीर में अभ्यंग, शिरोभ्यंग, गंडुष और कर्णपूरन बहुत हेल्पफुल रहता है, क्योंकि ड्राइनेस के वजह से पेन ज्यादा होता है, तो पेन को कंट्रोल करने के लिए ये जरूरी है। फिर 104 सर, महासैक्रल मुद्रा 104, और भुजंगासन 105, और अर्ध चक्रासन, ये 3 चीजें मेंस्ट्रुअल पेन में बहुत हेल्पफुल हो।
कोबरा और अर्ध चक्रासन, ये 3 चीज है। एब्डोमेन पेन के लिए कम होने के लिए एक सबसे अच्छी चीज जो मैं सबको यूज करने को बोलती हूँ, जब भी पेन हो, लोअर एब्डोमेन में पेन हो, तो क्यूमिन वाटर, जीरा का पानी गर्म करके तरह से बॉईल करके आधा चम्मच हींग और 2 टीस्पून कैस्टर केरन तेल डाल के गर्म पीने से तुरंत राहत मिलता है। विदिन 5 मिनट्स, बहुत इफेक्टिव है। नो डाउट फिर से आने के लिए हमें कुछ दवाइयां देना पड़ता है, पर प्रिवेंटिव अगर किसी को है कि चलो मुझे ये प्रॉब्लम्स रहते हैं, तो उसके लिए ये क्यूमिन वाटर बहुत अच्छा काम करता है। और दूसरी चीज जो है, ये तिल का सीड है ना, उसका ½ टीस्पून जो सीड हो, उसको गर्म पानी से लेने से भी पेन कम होता है। और स्कैंटी मेंस्ट्रुएशन में भी तिल का पानी पेन कम करता है। जब स्कैंटी मेंस्ट्रुएशन हो तो पपैया, जिंजर टी, रेजिन्स, टर्मरिक, ये बहुत हेल्पफुल रहता है। जब ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो तो बेल के पत्ते जो है वो बहुत यूजफुल होते हैं। 1 टीस्पून गर्म पानी से या ठंडे पानी से लेने से ये बहुत हेल्पफुल रहता है। उसी तरह धनिया के सीड्स, कोरिएंडर सीड्स भी ½ लीटर पानी में बॉईल करके उसमें जरा जैगरी डाल के लेने से भी एक्सेस मेंस्ट्रुएशन कम होता है। अशोक का जो बार्क मिलता है ना, अशोक का छाल, उसको दूध में गर्म करके आधा उसको बॉईल करके उसको लेने से ब्लीडिंग स्टॉप होता है। तो एक्सेसिव मेंस्ट्रुएशन में ये सब काफी हेल्पफुल रहता है। फिर आज का ट्रेंड जो हम देखें, 111 सर, स्लाइड 111। ब्लड टेस्ट लेते हैं, अल्ट्रासाउंड लेते हैं, थायराइड लेते हैं, अंडरलाइन जो है पीसीओएस है, थायराइड है, इश्यूज है, ये सब के लिए देखिए कॉल दिस टेस्ट। लाइफस्टाइल चेंजेस बोलते हैं, हार्मोनल थेरेपीज बोलते हैं, बट ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, वेजाइनल रिंग्स, और क्या कहते हैं कि कॉन्ट्रासेप्टिव लेके स्टॉप द पीरियड फॉर सम टाइम, दैट इज देयर मेथड ऑफ ट्रीटमेंट। हम इसको we feel that we should not use that methods, but हार्मोनल थेरेपी से हार्मोनल इम्बैलेंस जरा ज्यादा हो ऐसे मानने लगता है। हमारे फिर मेडिकेशन तो, अरे मेडिकेशन तो देते ही हैं, हार्मोनल आईयूडीज यूज करते हैं, पैचेस यूज करते हैं, इंजेक्शन यूज करते हैं, और थायराइड मेडिसिन काफी यूज करते हैं। हार्मोनल बैलेंस में हेयर ग्रोथ एक प्रॉब्लम है। तो हेयर ग्रोथ में अगर घर का हम कोई नुस्खे चाहिए तो ये जो हल्दी है, नमक है और बीटूटी या सॉल्ट है, उसको अच्छी तरह से घिसने से, बार बार घिसने से 1-2 महीने में हेयर ग्रोथ काफी कम हो जाता है। रेजर अगर यूज करेंगे ना तो वो बढ़ता है, सो प्लीज डोंट यूज रेजर्स। शतावरी, अरुणा, सरस्वती कृष्णन, ये सब बहुत अच्छे काम करता है। जस्ट अ फ्यू मोर स्लाइड्स। विटामिन B12 आज एक बहुत बड़ी चीज है जिसके बारे में काफी लोग बातें करते ही रहते हैं कि विटामिन B12 बहुत कम है, बहुत कम है। तो ऐसे जगह पे हमें क्या लेना चाहिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके वजह से काफी ऐसे सिम्टम्स है। तो लेट अस गो टू द फंक्शन। विटामिन B12 क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? तो ब्लड सेल का, रेड ब्लड सेल्स जो फॉर्मेशन होता है ना, वो विटामिन B12 में चाहिए। अगर B12 कम होता है तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है, और न्यूरोलॉजिकल जो फंक्शंस है ना, इसमें भी प्रॉब्लम्स होते हैं, और डीएनए सिंथेसिस। तो मॉडर्न में तो दे देते हैं, B12 इंजेक्शन देते हैं, और वेजिटेरियन में नहीं है, पर नॉन वेज में काफी इसके सप्लीमेंट्स रहते हैं। पर आयुर्वेद में या हम क्या दे सकते हैं जिसके वजह से हम इसको मदद कर सकते हैं? तो ये हमें समझना चाहिए कि डायरेक्टली नहीं, पर जो विटामिन डी का जो इन्वॉल्वमेंट होता है या एब्जॉर्प्शन होता है, इसके लिए हम लोग काफी मदद कर सकते हैं। ये B12 डेफिशिएंसी में हेल्पफुल रहता है। सो काउज मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट्स जो हो, जो ऑर्गेनिक मिल्क हो, घी हो, पनीर हो, योगर्ट हो, ये सब में छोटे छोटे अमाउंट में B12 रहते हैं। तक्र हर रोज लेने से इट इज वेरी गुड, और इट इज अ वेरी गुड ऑप्शन प्रोबायोटिक रिच होता है।
मूंग दाल जो स्प्राउटेड मूंग दाल होता है ना, वो भी डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। फर्मेंटेड फूड जैसे इडली हो, डोसा हो, पिकल्स हो, ये सब ब्लड फ्लोरा में मदद करता है, जिसके वजह से B12 प्रॉपर एब्जॉर्ब होता है। ओके। और च्यवनप्राश जो है वो न्यूट्रिशन का एब्जॉर्प्शन और इम्यूनिटी बूस्ट करता है, इससे अच्छा काम करता है। अगर हम हर्ब्स के बारे में बात करें तो अश्वगंधा, शतावरी, गुरुची, त्रिफला, ये सब चीजें इज वेरी हेल्पफुल फॉर विटामिन B12। और एनहांस करने से भी, जैसे जिंजर हो, क्यूमिन हो, अजवाइन हो, हींग हो, पंच इसके वजह से कि हम अपनी को बेहतर इंक्रीज कर पाते हैं, इससे इसमें भी एब्जॉर्प्शन बेहतर होता है। और टाइम से नीट खाना, ओवर तरह से भी विटामिन का एब्जॉर्प्शन ठीक होना। लास्ट में बस लास्ट इज 118 स्लाइड। इसमें मैं ये बताना चाहती हूँ कि शास्त्र में भी यही बताया है कि स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम। दैट इज, आयुर्वेदा में फर्स्ट प्रिवेंशन की ही बात हुआ है, नॉट फॉर क्यूरिंग ऑफ डिजीज। तो आयुर्वेद का फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रिवेंशन है। सो इसकी वजह से हम अगर हमारे पेशेंट्स को इससे कुछ अच्छी तरह से गाइडलाइन फॉर्मेट करें और हमारी दिनचर्या, ऋतुचर्या एंड जो भी हमें स्वस्थ रूप में सिखाया गया है वो हम फॉलो करें, तो हम काफी काफी बेहतर जिंदगी जी सकते हैं। एंड हम उसको क्वालिटी ऑफ लाइफ भी आयुर्वेद से इम्प्रूव कर पाते हैं। I thank you very much for the patient listening, और thank you for giving me this opportunity। अगर भूल चूक हो भाषा में कुछ भी हो नॉलेज में, तो मुझे माफ कर देना। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। बहुत ही थैंक यू। बहुत ही अद्भुत सेशन था मैम। आपकी जो दो बातें थी, मतलब मुझे भी घर घर गई। जैसे एक पहली ये थी कि मतलब हमें जो हमारे विचार है वो भी न्यूट्रिएंट इनटेक है, ये बहुत एक मतलब विचाराधीन मतलब चीज है, इस पर विचार करना चाहिए। बहुत ही जबरदस्त ये लगा मुझे, और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ इस इंटेलेक्चुअल सेशन के लिए आपका। अब मैं सभी सम्मानित श्रोतागणों से आग्रह करता हूँ कि वे कृपया, अगर उन्हें कोई संशय हो या किसी भी प्रकार का प्रश्न हो, तो हमारे माननीय वक्ता से क्रमिक रूप से एक एक करके पूछ सकते हैं। आप सभी का स्वागत। मैं सर्वप्रथम तो डॉक्टर जयश्री जी का हृदय से अभिनंदन करता हूँ, साधुवाद देता हूँ, स्वागत करता हूँ कि आपने इतना सुंदर हिंदी व्याख्यान दिया, तबीयत प्रसन्न हो गई। हाँ, तमिलनाडु वालों के, हाँ, पहले तो मैं घबरा रहा था कि तमिलनाडु के गुरु जी का स्पीच है और सब इंग्लिश में होगी, तो पहले तो मैं बहुत ही संशय में था, लेकिन बड़ा आपने मन प्रसन्न कर दिया मैडम। अच्छी शुद्ध हिंदी बोली आपने, ऐसी तो आशा नहीं थी कि तमिलनाडु वाले इतनी शुद्ध हिंदी बोलेंगे। तो आपका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत, बहुत बहुत बधाई। और प्रेरणादायक आपका व्याख्यान रहा, बहुत ही अभिभूत है हम लोग और हमारे शिष्य लोग आपके व्याख्यान से सुनकर। बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई। कोई क्वेश्चन तो पूछ नहीं सकते, क्वेश्चन गुंजाइश ही नहीं उसमें किसी प्रकार की। इतना बढ़िया आपका सारगर्भित व्याख्यान था, क्योंकि प्रश्न करने कोई मतलब औचित्य ही नहीं है। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। किसी को, यदि किसी और माननीय श्रोतागणों का प्रश्न है तो कृपया वो पूछ सकते हैं। मैम लाइव है अभी। मुझे लगता है कि इस अद्भुत व्याख्यान के बाद प्रश्न की कोई गुंजाइश बची नहीं है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ हमारी आदरणीय मैडम का कि उन्होंने इतना मतलब सुदृढ़ और बृहद स्तर पे इस व्याख्यान को प्रस्तुत किया हम सभी के बीच। हम सभी बहुत अभिभूत हैं इस व्याख्यान के बाद। अब मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे सभी श्रोतागणों का, जिन्होंने बहुत ही पेशेंटली ये पूरा लेक्चर लिसन किया। I would like to extend my sincere gratitude to our mentor Vaid Devendra Tugna sir, President Governing Body Rashtriya Ayurvedic Vidyapeeth, for his continuous support, guidance, and blessing. I thank our Dr. Vanna Shiroha ma'am, Director RAV, who is guiding force for all of these events. I would like to thank Vaid Rajesh Kotecha sir, Secretary Ministry of Ayush,
for his participation and encouragement in all our endeavors. Most importantly, I would like to express heartfelt thanks to all the gurus, shish, and other scholars who, with their presence and active contribution, make this webinar a successful one. Thank you so much. Namaskar. Thank you so much, ma'am. Thank you so much. all. Thank you very much. Thank you. Thank you.